फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिड्यूज एंड रेजिड्यूज सिस्टम्स। सो दिस लेक्चर इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वी विल लर्न what are residues, then we will discuss what is least residue and what is the difference between least residue and the residue, and finally we will discuss some particular types of residue systems. So residue systems are very important in number theory and they have a number of applications in various fields of cryptography and engineering. So let's start with the residues and residue systems. स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेजिड्यू. तो स्टूडेंट्स, अगर हम रेजिड्यू की बात करें, जो रेजिड्यू का कंसेप्ट है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्ग्रुएंसेस. तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है? इफ a and b be two positive integers such that a is congruent to b modulo m for some m belong to, then b is called a residue of a modulo m. So this is the definition. If two integer a and b are congruent with respect to another integer m, then we say that b is the residue of a in modulo m. तो b को हम रेजिड्यू कहेंगे. और आप जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव. So if b is the residue of a, similarly you can say that a is also a residue of b. So this is the definition of residue. It means if the difference of two integer a and b is divisible by m, then we say that b is a residue of a. For example, 15 is congruent to 3 mod 2. 15 is congruent to 3 mod 2. So therefore 3 is the residue of 15 with respect to modulo 2. Similarly 15 is congruent to 3 mod 3 also. So 3 is also the residue of 15 with respect to modulo 3. It means if the difference of two integer is divisible by modulo m, then they are called residue with respect to each other. Now we move to the definition of the least residue. For the concept of least residue, first you have to fix the positive integer m. Let m be fixed. M be fixed. Now suppose, for example, if m is 5, then 37 is congruent to 12 mod 5. Similarly 37 is congruent to 2 mod 5 and 37 is also congruent to 7 mod 5, because in every situation the difference of 37 and 12, 37 and 2, 37 and 7, इन सभी का जो difference है that is divisible by 5. So 12 is the residue of 37 with respect to modulo 5. Similarly 2 is the residue of 37 with respect to modulo 5 and 7 is also the residue of 37 with respect to modulo 5. But 2 is the least. 2 is the least. So this is the concept of least residue system. All these are residue but 2 is the least. And you may point out that
if we have a least residue, then that is unique. Least residue is always unique. So मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे इस लीस्ट रेजिड्यू के कंसेप्ट को? तो देखिए, इफ A is congruent to B modulo M and B satisfies the condition 0 less than equal to B less than M, then B is called least residue of A in modulo M. तो इट मीन्स, देखिए यहां से ध्यान से अगर आप नोट करें तो B इज एक्चुअली रिमाइंडर. A को आपने M से डिवाइड किया. इफ B इज द रिमाइंडर देन B इज द लीस्ट रेजिड्यू. तो इट मीन्स अगर आपने किसी भी इंटीजर का लीस्ट रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो जस्ट डिवाइड करिए, डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर रहेगा दैट विल बी द लीस्ट रेजिड्यू. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट रेजिड्यू विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो M. तो यहाँ पर हम दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंड दोनों डेफिनेशन जो है इक्वलेंट हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, a set of m distinct integers say a1 a2 a is called a complete residue system if for any integer there exists one and only one AI belonging to A1, A2, AM such that A is congruent to AI modulo M. तो रिवाइज करते हैं डेफिनेशन को. देखिए, अगर आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं मॉडुलो M, तो आपको क्या करना है? M डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करने हैं. M डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करेंगे और वो M डिस्टिंक्ट इंटीजर कैसे होंगे कि अगर आप कोई और इंटीजर लेंगे, कोई भी इंटीजर लेंगे सेट ऑफ इंटीजर से, वो इनमें से किसी एक के इक्वलेंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. कि अगर आपने कोई और इंटीजर A चूज किया देन दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एड वन एंड ओनली वन AI फ्रॉम दिस सेट, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम. तो सेकंड डेफिनेशन देखिए, a set of m distinct integers a1 a2 am is called a complete residue system. शॉर्ट में CRS लिखते हैं, complete residue system, if least residues of these AIs one less than equal to I less than equal to M belong to the set
0 1 2 up to m-1. Okay, or you can say that it is equal to the set, equal to the set. ओके तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन क्या है, m इंटीजर होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इंटीजर लेंगे आप, उसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब कहेंगे, आप a1 को डिवाइड करिए m से, उसका लिस्ट रेजिड्यू कैलकुलेट करिए, लिस्ट रेजिड्यू मीन्स रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, a1 को m से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, तो वो रिमाइंडर आएगा इन्हीं में से कोई होना चाहिए, a2 को डिवाइड करेंगे m से, जो रिमाइंडर आएगा इस सेट में आना चाहिए, am को डिवाइड करेंगे m से, रिमाइंडर जो आएगा इस सेट में आना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब भी हम किसी इंटीजर को m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इन्हीं में से आएगा 0 1 2 अप टू m-1। और देखिए जितने इंटीजर m है उतने ही ये इंटीजर है, इट मीन्स दिस, अगर आप इनको m से डिवाइड करेंगे इन सब इंटीजर्स को तो जो रिमाइंडर आएंगे वो यही सेट आएगा, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है कि a1 का रिमाइंडर जो है कोई और यहाँ आ सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, a2 का रिमाइंडर 0 हो सकता है, इट मीन्स इन सम ऑर्डर, बट आएंगे रिमाइंडर यही। So this is called complete residue system. So this is the definition. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको और क्लैरिटी आएगी कि व्हाट इज अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। स्टूडेंट एग्जांपल 1 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की बात करेंगे आपने m को फिक्स करना है। फॉर सपोज एग्जांपल यहाँ पर हमने m लिया, लेट m इज इक्वल टू 6। m अगर 6 है तो आपने m ही इंटीजर चूज करने हैं। सपोज s हमने एक सेट सिलेक्ट किया, s इज इक्वल टू 49 20 10 70 -18 -27। तो देखिए 6 ही इंटीजर है, इनको हमने चेक करना है कि ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। तो इस एग्जांपल को हम दोनों ही डेफिनेशन से चेक करेंगे कि दोनों ही डेफिनेशन से क्या मीनिंग निकल कर आता है यहाँ पर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है कि आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए सेट ऑफ इंटीजर से, आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट है, तो कोई भी इंटीजर लीजिए वहाँ से और आपने चेक करना है कि वो इंटीजर एग्जैक्टली एक इंटीजर के इक्वलेंट होगा एस के अंदर से। एस के अंदर से एक एग्जैक्टली एक इंटीजर आपको मिलेगा जो आपने इंटीजर चूज किया उसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए जैसे 80 अगर आप चूज करते हैं then 80 is congruent to exactly 20 मोडुलो 6। और आप चेक कर सकते हैं 80 इनमें से किसी और इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो इट मीन्स कोई भी इंटीजर आप चूज करेंगे एग्जैक्टली एक इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट आएगा। सिमिलरली अगर आप कोई और 54 चूज करते हैं, सपोज आपने 54 चूज किया, देन 54 इज कॉन्ग्रुएंट टू -18 मोडुलो 6। अब बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि 54 और -18 का जो डिफरेंस आएगा वो 72 आएगा, एंड 72 इज डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से आप कोई भी इंटीजर लेंगे वो एग्जैक्टली एक इंटीजर के कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। दिस इज बाय फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम सेकंड डेफिनेशन से टेस्ट करेंगे इस एग्जांपल को। इसी सेट को सेकंड डेफिनेशन से टेस्ट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन में क्या है कि ये जो सेट है आपने m को 6 चूज किया, 6 इंटीजर है इसके अंदर, 6 इंटीजर होने चाहिए, ओके। एंड आपने क्या करना है, ये जो 6 इंटीजर्स हैं इनका लीस्ट रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। लीस्ट रेजिड्यू मीन्स जो रेजिड्यू आएंगे वो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 इनके बीच में आने चाहिए, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 49 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज 1। 49 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 6। सेकंड देखिए 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 6 एंड 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 6। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, 49 को 6 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर आया, 20 को 6 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, 10 को 6 से डिवाइड किया 4 रिमाइंडर। एंड सिमिलरली 17 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से 6 से, सॉरी, मोडुलो 6, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 6। -18 देखिए नेगेटिव है बट मल्टीपल है 6 का, तो -18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6। एंड सिमिलरली -27 इज कॉन्ग्रुएंट टू
3 मोडुलो 6। तो देखिए अगर हम किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। और आपने देखा 49 को डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आया, दिस इज हेयर। 20 को डिवाइड किया 6 से, 2 रिमाइंडर आया, दिस इज हेयर। 10 को डिवाइड किया 4, दिस इज हेयर। 5 इज हेयर, 0 इज हेयर एंड 3 इज हेयर। तो ये जो रेजिड्यूज आए हैं वो इस सेट के इक्वल है, बट ऑर्डर चेंज है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आ गया, रिमाइंडर यही आएंगे बट इन सम ऑर्डर। सो दिस इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। सो दिस सेट इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो आपने ऐसे चेक करना है किसी भी सेट को कि वेदर दैट इज ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम और नॉट। सो नेक्स्ट, इन दोनों डेफिनेशन से मिलाकर हम एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन और यहाँ पर डेराइव करेंगे, उसको टेस्ट क्राइटेरिया कह सकते हैं आप। कि जब भी आपको चेक करना है तो इसको आप एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं, टेस्ट क्राइटेरिया। ए सेट ऑफ m integers a1 a2 am is a complete residue system modulo m if it satisfies two conditions. Number one, s, ये तो हमने लिख दिया, s has m elements. Okay, if ai aj belongs to s implies ai is not congruent to aj mod m for i not equal to j। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि आप इनमें से कोई भी दो इंटीजर चूज कीजिए, डिफरेंट होने चाहिए। a1 a2, आंख बंद करके कोई भी दो इंटीजर लीजिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो m। वो दोनों m में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, उन दोनों का डिफरेंस m से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, और इसको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कितने होते हैं। एक्चुअली दिस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में बी इनफाइनाइट, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में बी इनफाइनाइट। तो वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम्स। कैसे, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। इफ a1 a2 am is a complete residue system modulo m and k is an integer such that k and m they are co-prime, GCD of k with m is 1, then k a1 k a2 k am is also a complete residue system। सो ये वो रिजल्ट है जो आपको ये बताता है कि इफ़ यू हैव ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, तो उस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम से आप इनफाइनेटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बस आपके पास एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होना चाहिए, उसको यूज़ करते हुए आप इनफाइनेटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, एक के चूज करना है जिसका m के साथ जीसीडी 1 हो। के चूज कीजिए, के को सभी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नया सिस्टम बन जाएगा, दैट इज आल्सो ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। और आप के कितने चूज कर सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी नंबर ऐसे चूज कर सकते हैं जिनका m के साथ जीसीडी 1 होगा। जितने भी आप नंबर m के साथ चूज करेंगे जिनका जीसीडी 1 होगा, उनसे हर बार आपके पास एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम आएगा। सो ये थ्योरम क्या करती है, ये गारंटी देती है कि इफ वी हैव ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम देन वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनेटली मैनी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो प्रूफ देखिए, let
A1 A2 AM be a complete residue system मोडुलो m। इसको नहीं भूलना आपने मोडुलो m को, बिकॉज जब तक ये नहीं होगा कोई मीनिंग ही नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू m इंटीजर मोडुलो ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने एक इंटीजर चूज किया, लेट k इसको प्राइम टू m। तो क्लेम क्या है, व्हाट इज आवर क्लेम, कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया k a1 k a2 k am, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट कंस्ट्रक्ट होगा दैट इज आल्सो ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो अभी हमने टेस्ट क्राइटेरिया डिस्कस किया कि इसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कब कहेंगे। सबसे पहले तो ये m इंटीजर होने चाहिए, ओके, और इनमें से कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ना हो। कोई भी हम दो चूज करें, दे मस्ट नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इट मीन उन दोनों का डिफरेंस m से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ओके। तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल ki is congruent to kaj मोडुलो m। कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं इसको। हमने मान लिया कि इनमें से किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस m से डिवाइड होता है फॉर i नॉट इक्वल टू j, ओके। दिस implies m divide ki minus kaj, and this implies m divide k into ai minus aj। बट m और k का जीसीडी क्या है, 1। m and k हैज जीसीडी 1, तो बाय गॉस लेमा m will divide ai minus aj, m will divide ai minus aj, and this implies ai is congruent to aj मोडुलो m। तो अगर आप इनको मानते हैं कि कोई दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एग्जैक्टली क्या होगा कि ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए जे मोडुलो एम। बट इसको तो आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कह रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो यहाँ पर कोई भी दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो अगर आप ये मानते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो ऑलरेडी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। ए कॉन्ट्राडिक्शन ओके, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि कोई दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट है, एंड दिस इंप्लाइज के आई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू के ए जे मोडुलो एम फॉर आई नॉट इक्वल टू जी। इट मीन्स कोई भी दो इंटीजर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो दिस इज द टेस्ट क्राइटेरिया, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और टेस्ट क्राइटेरिया को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और रेजिड्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। तो बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।